جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامک یونیورسٹی میں بے شمار مسائل ہیں اور ہم نے ادھر احتجاجی دھرنے کا اعلان کیا ہے، تو آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے محترم ناظم جامعہ وہ آئندہ کا لائحہ عمل پیش کریں گے۔ تو میں بلا تاخیر ناظم جامعہ کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، قوت ہی قوت، جمعیت، قوت ہی قوت، جمعیت، قوت کا نعرہ، جمعیت، کردار اعلیٰ، کردار غازی، بیداغ بازی، نکلتا سورج، سورج کی کرنیں، کرنوں کی بالا، بالا کی موتی، دمست بلندر، دمست بلندر، ہمت جامعہ، جرت جامعہ، ناز جامعہ، ناز جامعہ، ہمت جامعہ، جرت جامعہ، ناز جامعہ، ناز جامعہ، قائد جامعہ، سالار جامعہ، ناز جامعہ، ناز جامعہ، ناظم تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لو ہمارا، ناظم تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لو ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے میرے انتہائی عزیز طالب علم ساتھیوں، آج رات کے اس پہر 12:30 بجے اتنی بڑی تعداد میں آپ کا یہاں پر موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اس ماحول پر جو سیاہ باطل چھائے ہوئے ہیں ان سب کے چھٹنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور آپ کی کامیابی عظیم ہے۔ لوگ کر دیکھو، ٹکرا کر دیکھو، نے دیکھا ہے، نے پرکھا ہے، جان گیا ہے، زندہ ہے طلبہ، زندہ ہے طلبہ۔ اس روڈ کے تحت نظر لوگ نظر آ رہے ہیں، طلبہ نظر آ رہے ہیں، اور میں درخواست کروں گا کہ جتنے ساتھی پیچھے بیٹھے ہیں سب اپنی موبائل کے ٹارچ آن کر دے تاکہ یہ ویڈیو میں بھی نظر آنی چاہیے۔ اور میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ وہ عظیم جدوجہد ہے کہ اس یونیورسٹی کے تعلیمی ماحول کو بچانے کے لیے، اس یونیورسٹی کے اندر آزادی رائے پر قدغنوں کے خلاف اور طلبہ کے اوپر بے جا پابندیوں کے خلاف جس مزاحمت کا علم آپ لوگوں نے اٹھایا ہے وہ انشاءاللہ اس یونیورسٹی کی تاریخ کا تعین کرے گی۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میں مختصراً بات کروں گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے طالب علم کو ہر طرح سے زد و کوب کیا جا رہا ہے۔ جب سے نئی انتظامیہ آئی ہے ان کی پالیسی یہی ہے کہ کسی طرح سے طلبہ کو ذہنی اذیت کا شکار کیا جائے، مسلسل ان کو ٹارچر کیا جائے، نت نئے طریقوں سے ان کو ہراساں کیا جائے۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک طالب علم اس یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیتا ہے، اس کی رہائش کی فیسلٹی موجود نہیں ہے، اور در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد، آدھی ڈگری گزرنے کے بعد جب اس کو ہاسٹل ملتا ہے تو اس ہاسٹل کی کیفیت یہ ہے کہ پاکستان کے تمام جامعات کے تمام ہاسٹل سے سب سے زیادہ فیس وصول کرنے کے بعد بھی اس کے اندر اسٹڈی رومز نہیں ہے، اس کے اندر تعلیم کا ماحول نہیں ہے، اور پھر یونیورسٹی کو اسی پالیسی کے تحت کہ کس طرح سے ان طلبہ کو دبایا جائے، ان کو یہ آئیڈیا بھی سوچا کہ ان ہاسٹل کو جیل کے اندر کیسے تبدیل کیا جائے۔ پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہ منصوبہ کسی نے نہیں سوچا ہوگا جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی اس نااہل اور نالائق انتظامیہ نے سوچا۔ اور میرے بھائیوں، صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف باری فیسیں ہیں، دوسری طرف ہاسٹل نہیں ہے۔ میس کے اندر جائیں تو اس کا معیار ناکافی ہے، آپ کیفیز میں جائیں تو کیفیز بند پڑے ہیں۔ یہاں پر بعض ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں دوسرے اور 7ویں سیمسٹر کے طلبہ ایک ہی کلاس میں بیٹھتے ہیں میرے بھائیوں، اور بعض ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں، پولیٹیکل سائنس کی ڈپارٹمنٹ کے اندر اردو ڈپارٹمنٹ کا ٹیچر آ کر پولیٹیکل سائنس پڑھا رہا ہوتا ہے۔
मेरे भाइयों, करप्शन उरूज पर है। पिछले दिनों आपने सुना कि मेरी और आपकी फीसों से करोड़ों रुपए की यहां पर चोरी हो गई, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, इजिप्शियन स्टाइल्स गेट्स लगे हैं, आपने देखा कि उसका पूरा हिसाब हमने जब सामने लाया, हमें बताया गया कि करोड़ों रुपए के हैं, लेकिन उनकी कीमत और मालियत तो लाखों के अंदर बनती है। हम पूछते हैं कि किसकी जेब में ये पैसे जा रहे हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि टीचर्स के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही है। सूरत हाल ये है मुलाजमीन को दबाया जा रहा है। सूरत हाल ये है कि तलबा को धमकाया जा रहा है, चाहे वो ईमेल्स की सूरत में हो कि कभी धमकियां ईमेल्स किए जा रहे हैं, कभी नोटिफिकेशंस किए जा रहे हैं, कभी जो हमारा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उस पर कदहाने डाली जा रही है। और ये कहां पर? ये कहीं गुजरे माहौल के अंदर नहीं, ये कहीं फस्तायत और डिक्टेटरशिप के उस गए गुजरे माहौल के अंदर नहीं, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के अंदर मौजूद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर ये माहौल है। इसलिए हम इसको मुस्तरद करते हैं। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, हम दूसरे जामियात को देखते हैं। दूसरी जामियात के अंदर अगर कोरोना के दिनों में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के तहत अगर पूरा निजाम बिल्ड किया गया, तो उनने उसका ये फायदा उठाया कि उसके जरिए से लोगों को पैगामात भेजे जाए, उन तक नोट्स भेजे जाएं, उनको तालीमी सहूलियात भेजी जाए। लेकिन हमारी इंतजामिया को अगर कोई बात सोची तो वो यही कि इन ईमेल्स को इस्तेमाल किया जाए कि अगर कोई इस पे बोलता है कि हमारे हवाले से इस करप्शन की तहकीकात की जाए, कोई इस पे बोलता है कि हमें हमारे हुकूक दिए जाए, तो उनको धमकियां दी जाती है, उनको ईमेल्स के जरिए से बताया जाता है हम नहीं मानते कि ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जमीयत तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ये हमारा तालीमी इदारा है। ये कहां पर होता है कि अगर आप बोले, आपने अपने हुकूक के लिए रैली निकाली, तो आपने देखा कि यूनिवर्सिटी ने सबको ये मेल्स भी किए थे कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तुम्हारा बाप भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, आपने देखा इनकी अपनी सूरत हाल ये है कि उनकी करतूतों से नेशनल असेंबली की रिपोर्ट्स ये रंगीन है, सेनेट की रिपोर्ट्स रंगीन है, ऐवानों के अंदर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का तमाशा बन गया है। और इनके हवाले से जब बदअखलाकी की बातें नेशनल असेंबली की कमेटीज में पहुंचती है, तो ये लोग बाकायदा मैसेज करके तमाम क्लासों को ऑफ करके रैलियां निकालते हैं, यूनिवर्सिटी की रोड्स बंद करते हैं, कश्मीर हाईवे की तरफ जाते हैं। और जब तलबा की जायज हुकूक की बात आती है, तो फिर ये धमकियां देते हैं कि हम FIR करेंगे, हम एक्सपेल्शन करेंगे। किसी को भी, किसी बाप को भी हम इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि वो हमारी हुकूक पर गसब डाले और फिर हमसे तवक्को करे कि वो हमें धमकी देंगे और हम डर जाएंगे। आप मुझे बताएं, क्या आप डरेंगे? आपकी आवाज बतानी चाहिए, क्या आप डरेंगे या आप मैदान में रहेंगे? नाजिबा इशारा कवा, नाजिबा इशारा कवा। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, ये जो सऊदी से इंपोर्टेड सदर है, ये आए हैं 2 साल के अंदर इसको इस बात की तौफीक नहीं हुई कि वो तलबा के साथ बैठे, वो असातिज़ा के साथ बैठे, वो उनसे पूछे कि आपके मसाइल क्या है, वो उनके मसाइल के अंदर दिलचस्पी ले, वो उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करे। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि 2 साल बाद भी वो अगर किसी तालिब इल्म से मिला है तो उससे पूछता है कि जब 3 दिन हॉस्टल के अंदर पानी नहीं था तो तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुमने ट्वीट की। अफसोस का मकाम और शर्म का मकाम है। आग लगा दो, आग लगा दो, तलबा का मंशूर सुना दो, आग लगा दो, आग लगा दो, तलबा का मंशूर सुना दो, आग लगा दो। मिस्टर प्रेसिडेंट, हमारा पैगाम यही है
कि you just own your own business, you just mind your own business, और किसी का बाप भी हमारे इन ट्विटर और फेसबुक के अकाउंट के हवाले से हमें हिदायत नहीं दे सकता। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, तमाम सूरत हाल आपके सामने है कि ये इंतजामिया कि अगर फीस के मामलात को देख ले, ये धमकियां देते हैं कि अगर इतने दिनों के अंदर तुमने फीस जमा नहीं की तो तुम्हें क्लास में नहीं छोड़ा जाएगा। हम यहाँ पढ़ने आए हैं, हम यहाँ पर वालिदैन की उम्मीदें लेकर आए हैं। हमारे वालिदैन अपनी मेहनत से यहाँ पर फीस पे करते हैं। हम तुम्हारे नौकर नहीं है, तुम हमारे नौकर हो, तुम हमारी फीसों से पलते हो, तुम्हारी तनख्वाहें हमारी फीसों से आती है, इसलिए तुम हम इस बात के पाबंद नहीं करोगे। अब हम तुमसे पूछेंगे कि अगर यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल क्राइसिस में है तो उसके जिम्मेदार मैं और आप नहीं है। हम पूछेंगे, हमें तो एग्जाम से उठाया जाता है, हमें तो फाइनल एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता, हमसे तो पूरी की पूरी फीस वसूल की जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर करोड़ों रुपए का यूनिवर्सिटी का फाइनेंशियल क्राइसिस है तो वो क्यों है? वो तुम्हारे करप्शन की वजह से है। इसलिए इस यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियल क्राइसिस से हम निकालेंगे, हम इस यूनिवर्सिटी को बचाएंगे। ये हमारी यूनिवर्सिटी है, लेकिन किस तरह बचाएंगे? इस तरह नहीं कि तलबा के ऊपर इस तरह नहीं इस तरह नहीं कि आप हमें बताएंगे और आप तलबा से स्कॉलरशिप तो आप दे नहीं सकते, ऐसा स्कॉलरशिप में कटौतियां करेंगे, लैपटॉप्स चोरी करेंगे और इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। हम इन फाइनेंशियल क्राइसिस को से यूनिवर्सिटी को निकालेंगे, लेकिन तुम्हारी इन बड़ी बड़ी गाड़ियों को बेच के निकालेंगे। हम आप यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालेंगे, लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ बिजली नहीं होती, तुम्हारे दफातर में भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह तलबा के हौस क्लासे के अंदर एसी बेकार पड़े हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, और हमसे कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी अगर बंद भी हुई तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है। इस तरह नहीं चलेगा मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों। इस तहरीक का आगाज हो चुका है, ये यूनिवर्सिटी को बचाने की तहरीक है, ये यूनिवर्सिटी के तालीमी माहौल को बचाने की तहरीक है। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, अभी जो सूरत हाल है, यूनिवर्सिटी ने यहां तक किया कि इस पूरे करप्शन के बाद कि जो कि रिसेंटली हुआ, मैंने आपके सामने रखा कि यूनिवर्सिटी ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने उनको डेडलाइन दी थी कि आपने इन पैसों को वापस लेकर हमारे दरमियान आना है। टर्नस्टाइल गेट्स के हवाले से वो हमने कहा है कि नामंजूर है। करोड़ों रुपए आप करप्शन भी कर सकते हैं, चोरियां भी कर सकते हैं, गेट पे भी लगाए जा सकते हैं, तो तलबा के लिए हॉस्टल क्यों नहीं बन सकते? इसलिए मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, ये जो हमारा धरना है, ये जो यूनिवर्सिटी को बंद करने के बाद ये मुतालिबात है कि हम यूनिवर्सिटी के अंदर ये माहौल तस्लीम नहीं करते कि आप क्लासरूम्स के अंदर भी जाकर कहें कि 5 बंदे इकट्ठे नहीं बैठ सकते, आप लॉन्स के अंदर भी जाकर कहें कि 5 बंदे इकट्ठे नहीं बैठ सकते, आप गार्ड्स बेचते हैं। और इसलिए कि जो कुछ हम कर रहे हैं, कोई इस पर आवाज उठाने वाला ना हो, कोई इसके खिलाफ मुजाहिमत करने वाला ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो सूरत हाल है। मैंने आपको कहा था कि जिस शिद्दत के साथ तुम आओगे, उस शिद्दत से हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। जिस कुव्वत के साथ तुम आओगे, उससे बढ़कर कुव्वत से तुम हमें अपने सामने पाओगे। कभी हमारे कदम नहीं रुकेंगे। वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जबर तशद्दुद सह न सके, शमशीर सना के दारों पर रूदाद सदाकत कह न सके। ये चश्म फलक ने देखा है जो ताकत में हमसे बढ़कर थे, तौहीद का तूफा जब भी उठा वो मद्द मुकाबिल रह न सके। इसलिए मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, आखिरी बात यही है
यूनिवर्सिटी बंद है। अभी यूनिवर्सिटी के अंदर से और तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर लहू हमारा, तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर लहू हमारा। और सिर्फ यूनिवर्सिटी भी बंद नहीं रहेगी, हम इंशाअल्लाह इससे आगे बढ़ेंगे और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का मसला इसको कौमी इशू बनाएंगे। ये हम इंशाअल्लाह रोडों पर भी लेकर जाएंगे। से बोलिएगा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। पावर पावर स्टूडेंट पावर, पावर पावर स्टूडेंट पावर, स्टूडेंट पावर, स्टूडेंट पावर, स्टूडेंट पावर। इसलिए जो आगे का लाए हमल है वो मैंने आपके सामने रख दिया कि यूनिवर्सिटी के ब्लॉक्स हो, यूनिवर्सिटी के ट्रांसपोर्ट हो, यूनिवर्सिटी की जितने गेट्स हो, पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी बंद रहेगी। और इंशाअल्लाह कल अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो यहां से एक कदम और आगे बढ़कर मैं ऐलान करूंगा कि उससे आगे बढ़कर इंशाअल्लाह हम क्या करने जा रहे हैं। और मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, आखिरी बात यही है कि जिंदा की सलाखें टूटेंगी, काफलों को परेशान देखेंगे, वादा है हमारा जंजीरों, हम जश्न बहारा देखेंगे, कदम बढ़ते रहेंगे, जद्दोजहद बढ़ती रहेगी, कोई रुकेगा नहीं, कोई झुकेगा नहीं, कोई तकेगा नहीं। इंशाअल्लाह कामयाबी का सूरज हमारा मुकद्दर बनेगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। دلتا بسلو دلتا